In this video, we will be studying about magnetic field due to a current carrying straight conductor. First of all, we will consider a straight conductor which is carrying current. Now I have got this wire. Okay, this is a straight conductor in which we have to pass the electric current. We can keep this conductor either in this position or we can change its position. It may be kept like this or in any direction as you wish. The thing is that we have to pass electric current from to this wire, so we will draw a circuit diagram for it. Now this is our straight conductor and we are connecting this straight conductor with a battery along with a key and a variable resistance. Now this is a variable resistance. We can write its value. It is variable resistance. This is key and this is battery. So as soon as we switch on this key, what happens? A constant value of current starts flowing from positive terminal of the battery into this wire. So this time the current in the wire is directed from upside towards downward. The activity what is described that we have to allow this wire or pass this wire to a card sheet like this. And in this card sheet, this wire is inserted and it passes to its bottom line. So what is seen, if you sprinkle iron sheets or iron filings over there, so as soon as we switch on this key, these filings arrange themselves forming concentric circles like this. That means the magnetic field lines are in form of concentric circles which depicts the direction of the magnetic field. This is magnetic field lines. Now these are just circles. So direction of the magnetic field lines can be found using this right hand thumb rule. Now what is this right hand thumb rule? In order to describe this rule, we will hold the straight conductor in our right hand. Now this is our right hand. We have to hold this straight conductor in our right hand in such a way that the thumb indicates direction of the current. So in present situation, the current is moving in the downward direction. So I have folded this wire in this way in my right hand, such that thumb is indicating the direction of the current. Then the curls of this finger, you see the curls of my fingers, they are indicating the direction of the magnetic field lines. So the direction of the magnetic field lines can be indicated in this way. See here, magnetic field lines. हमने इस वायर को ऐसे पकड़ लिया, हम नीचे आ रहा है, तो मेरी उंगलियों का ये मोड़ किस तरफ जा रहा है? यहाँ से पीछे से होके आगे की तरफ, इस तरह से ऐसे मूव कर रहा है. तो हमें डायरेक्शन किधर बनानी पड़ेगी? It will be depicted in this way. इस प्रकार से ये लाइन ऐसे जा रही, यहाँ से आगे से जाएंगी और पीछे से इस तरह से मुड़ जाएंगी. हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी आ रही है? ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है. अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी आ रही है? इधर से आ रही है, इधर जा रही है, इधर से आएगी और इधर जाएगी, फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड. ठीक है, तो यहाँ से देखोगे जब सामने से, तो आपको कैसी दिखाई दे रही है? ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. ऊपर से हम देखेंगे तो हमको ये कैसी दिखाई देगी? क्लॉकवाइज. और नीचे से देखेंगे इधर से तो कैसी दिखाई देगी? एंटी क्लॉकवाइज.
This is the case when the direction of current is from positive terminal, that means from upside to downward. Now suppose the direction of the current has changed. I am changing the direction. This is the direction of the current. Then the wire will be holded in this way. तब हम वायर को ऐसे पकड़ेंगे, ये ऊपर की तरफ हम रखेंगे करंट की डायरेक्शन में. तो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे आ रही है देखो, इस तरह से ऐसे आएगी और ऐसे करके पीछे घूम जाएगी. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस they will be again concentric circles like this. लेकिन इस बार कैसे आएगी, इधर से इस तरफ. डायरेक्शन इज रिवर्स. ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो जाता है, रिवर्स. फैक्टर्स अफेक्टिंग magnetic field of straight conductor. First of all, कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा? Will it depend upon the current? क्या ये करंट पर डिपेंड करेगा? The answer is yes, because current carrying conductor wire, करंट इसमें आने की वजह से ही तो ये मैग्नेटिज्म शो कर रहा है. तो हम जितनी ज़्यादा करंट इसमें से फ्लो कराएंगे उतना ही ज़्यादा इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और उतना ही ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी. तो हम कह सकते हैं दैट दिस मैग्नेटिक फील्ड इट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर. इस वायर में करंट के कारण जो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसी ऐसी लाइन से बना है वो किस पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट पर. जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. सेकंड, क्या ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है. मान लो ये हमारा वायर है, ऐसे रखा हुआ है, इसमें करंट हमने अपवर्ड दे रखी है. तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने यहाँ पर ड्रॉ की तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप देख रहे हो इस तरीके से जा रही हैं. तो ये अगर मान लो मेरा पॉइंट यहाँ है, ये भी पॉइंट हम यहाँ लें तो ये डिस्टेंस उसका r है. इसी तरह से अगर हम P को P डैश पॉइंट पर लें तो ये डिस्टेंस r डैश हो गया. अब आप देख सकते हो कि r इज लेस देन r डैश, स्मॉल r इज लेस देन r डैश. व्हाट डज इट मीन, ये डिस्टेंस P पॉइंट इज क्लोज टू द वायर एज कंपेयर टू P डैश पॉइंट. क्या P पॉइंट पर और P डैश पॉइंट पर एक ही मैग्नेटिक फील्ड होगा? आंसर इज नो, क्योंकि जितना हम पास हैं, ये एक्चुअली ये तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है. तो हम जितना पास जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा. तो इसलिए जितना हम दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट. पास आने पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, दूर जाने पर फील्ड वीक हो जाएगा. क्या ये हैंड की डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू? यस, मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सेस व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स. जैसे ही करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, आपने देखा कि हमने क्या किया, जब पहले डाउनवर्ड करंट था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिस डायरेक्शन में ड्रॉ हो रही थी, जैसे ही हमने डायरेक्शन अपवर्ड कर दी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिवर्स डायरेक्शन में आ गई. दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी या मैग्नेटिक फील्ड का जो नेचर है वो करंट की डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है. तो ये तीन फैक्टर्स हैं जो कि क्या कर सकते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसको अफेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन ऑफ द करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, देन डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड देन द डिस्टेंस ऑफ द करंट. इनमें क्या वेरिएशन है, करंट बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा और करंट कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा. जबकि डिस्टेंस के साथ अपोजिट होगा, अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा
और अगर डिस्टेंस को कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, जिस दिशा में चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा।